بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے ملک میں امن و امان کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ملک میں امن و امان کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا گیا ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے ملک میں امن و امان کے لیے اقدامات پر اظہار اطمینان کیا گیا ہے۔ تھانہ ہربنس پورہ میں گارڈ کی فائرنگ سے شیر کی ہلاکت پر مقدمہ درج ہونے کا معاملہ، محکمہ وائلڈ لائف نے مقدمے میں شہریوں کی جان بچانے والے گارڈ کو ہی نامزد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق غیر قانونی طور پر شیر رکھنے والے اصل مالک کو نامزد نہ کیا گیا۔ شیر کے اصل مالک کے بجائے گارڈ کو نامزد کر کے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہربنس پورہ میں شیر کی ہلاکت کے معاملے پر محکمہ وائلڈ لائف کے حکام کا نرالا ایکشن۔ شہریوں کی جان بچانے والے گارڈ شہباز کے خلاف تھانہ ہربنس پورہ میں شیر کی ہلاکت کا مقدمہ درج۔ معاملے کے اصل ملزم شیر کے مالک علی عدنان کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کی غفلت اور اعلیٰ حکام کو گمراہ کرنے کی کوششوں پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق ہربنس پورہ میں شہری علی عدنان نے مارے گئے شیر کو غیر قانونی طور پر اپنے فارم پر رکھا ہوا تھا۔ علی عدنان کی غفلت کی باعث شیر فارم سے فرار ہو کر آبادی میں گھس گیا۔ فارم ہاؤس کے گارڈ شہباز نے شہریوں کی جان بچانے کے لیے سیکیورٹی انچارج کے کہنے پر شیر کو فائر مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق شیر کی ہلاکت کا مقدمہ محکمہ وائلڈ لائف حکام کی درخواست کے مطابق درج کیا گیا ہے۔ تاہم شہریوں اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے اصل ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ شاہزیب شہزاد، لاہور نیوز۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، حکومت پنجاب کی جانب سے ادویات کی دوسری کھیپ پارا چنار روانہ۔ ادویات سمیت 41 ضروری آئٹمز کی کھیپ بھجوا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید 5 ٹرک کی فراہمی کے لیے اقدامات کا حکم۔ بزرگ مریضہ پارا چنار سے پنجاب ایئر ایمبولینس سروس کے ذریعے اسلام آباد منتقل۔ مریم نواز کا کہنا تھا، سیاست نہیں خدمت کا وقت ہے، پارا چنار کے عوام ہمارے اپنے ہیں، مصیبت کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، موبائل ہیلتھ یونٹ بھی بھیجا جائے گا۔ محسن عوام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا احسن اقدام۔ ادویات اور ضروری سامان سمیت 41 ضروری اشیاء کی دوسری کھیپ روانہ۔ ضروری ادویات میں انسولین، کتا کاٹے کی ویکسین سمیت 24 آئٹمز شامل۔ ادویات کے 12 بڑے کارٹن پارا چنار پہنچ چکے۔ مزید کی ترسیل کے انتظامات مکمل۔ صوبائی وزرائے صحت سلمان رفیق اور عمران نذیر نے ادویات پارا چنار منتقلی کے عمل کی نگرانی کی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید 5 ٹرک سامان کی فراہمی کے لیے اقدام کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کے ہدایت پر پارا چنار کی بزرگ مریضہ بذریعہ ایئر ایمبولینس اسلام آباد منتقل۔ ضلع کرم کی رہائشی 60 سالہ مریضہ کے بیٹے ذیشان حیدر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، یہ سیاست نہیں خدمت کا وقت ہے، پارا چنار اور کرم کے عوام ہمارے اپنے ہیں، مصیبت اور مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرورت پڑی تو مزید مریضوں کو پارا چنار سے راولپنڈی منتقل کیا جائے گا۔ قائد محمد نواز شریف نے مجھے خصوصی طور پر پارا چنار کے لوگوں کی مدد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا ہے کہ ایئر ایمبولینس سروس شروع کرنے کا مقصد ہی بر وقت اور جلد امداد کی فراہمی تھا۔ 9 مئی ناقابل معافی جرم ماسٹر مائنڈ کو سزا ہوگی۔ احتجاج کی آڑ میں شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی تو نہ کریں، پاکستان ہے تو ہم سب ہے، سیاسی دہشت گردی نہیں چلے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا عوامی اجتماع سے خطاب، بولے موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے ملکی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑا دن تھا کہ 9 مئی جو ایک سانیہ ہے، جو ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اس کے 25 مجرمان کو کل سزائیں ہوئی۔ ان لوگوں نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، ملک کی دفاعی تنظیمات پر حملے کیے، ملک کے دفاع کو سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سیاست کرو تہذیب و تمدن کے دائرے میں کرو، سیاست کرو اختلاف کرو سیاستدانوں سے کرو، شہداء سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ جو سرحدوں کے محافظ ہیں، جو پاکستان میں جتنے لوگ امن سکون سے سوتے ہیں، اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے 45 ارب کی سبسڈی دی بجلی کے بلوں پہ، یہ 95 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تاکہ بل کم آئیں۔ اب ونٹر پیکج آیا ہے، بجلی کے بل مزید کم ہوں گے، اور ہم جو زبان دیتے ہیں اس پہ پورا اترتے ہیں۔ ہم نے
अल्लाह ताला के फजल से जो वादे किए थे आज उसकी तकमील आपके सामने हो रही है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का मामला, JUI फे का बिल की मंजूरी के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मदारिस बिल का नोटिफिकेशन ना आया तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जिसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा खुर्शीद। लाहौर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम वादद रोड पर इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। जनरल सेक्रेटरी JUI फे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खिताब में कहा कि मदारिस बिल का नोटिफिकेशन ना आया तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जिसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। आसिफ अली जरदारी पर मदारिस बिल के मामले पर प्रेशर है, अगर जमात ने फैसला किया तो इनकलाब को कोई माई का लाल रोक नहीं सकेगा। अब साथी कहते हैं कि फिर ये मुकर जाएं, फिर जाएं, यू टर्न ले ले। मैंने कहा अगर ये यू टर्न लेते हैं तो मैदान में हम फिर हैं इंशाअल्लाह अज़ीम। फिर वो देखेंगे कि इंसानों का ऐसा समंदर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा कि इस्लामाबाद में जो है वो तही दामन की शिकायत करेगा कि मेरे दामन में इतने लोग तो नहीं समा सकते। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इसराइल आलमी दहशत गर्द है, जिसकी पुष्ट पनाही अमरीका कर रहा है। इसराइल ने लिबनान, शाम और फलस्तीन में क़यामत बर्पा कर रखी है, जबकि 2 अरब मुसलमान सहयूनी बर्बरियत पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसराइल चाहे फलस्तीन पे हमला कर रहा है, चाहे लुबनान में कर रहा है, चाहे शाम में कर रहा है, वो हर लिहाज से काबिल मुज़म्मत है। इसराइल है, उसकी पुष्ट पर आलमी ताकतें, बिलखुसूस अमेरिका। कॉन्फ्रेंस के खिताब में मौलाना अमजद खान और असलम गौरी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर में बहता हुआ खून नजर नहीं आ रहा। भारत से जंग हुई तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अदनान हसन के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पाकिस्तान मजहबी सियाहत के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। सब चाहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी आए और मुल्क तरक्की करे। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिद महमूद अशरफी का सेमिनार से खिताब। बोले, कोई भिखारी और मनशियात फरोश हज उम्रा ज़ायरीन के भेस में नहीं जाने देंगे। गजा में इस्टाहिली जारियत जारी है। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी उम्रे पे जाए या हज पे जाए, जब तक मुतमईन ना हो किसी का सामान लेकर ना जाए। हमारे लिए ये एक बदनामी बन गई है कि पाकिस्तान से आने वाला या वो मंशियात ला रहा है या वो भिखारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया है। हमें ये आज़म करना है और हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान से हज व उम्रे पे जाने वाला या ऐसी सूरत बना के जाने वाला कोई भी ना भिखारी हम जाने देंगे ना मंशियात। पंजाब हुकूमत का मुस्बित इक़दाम, वज़ीराबाद, कोटद्दू, तौंसा, मरी और तलागंग को ज़िला बना दिया गया। गुजरात भी डिवीजन करार, जबकि लाहौर सूबे में सबसे ज़्यादा 10 तहसीलों वाला ज़िला बन गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का मुस्बित इक़दाम, परवेज़ इलाही दौर में बने 5 अजला को तस्लीम कर लिया गया। वज़ीराबाद, कोटद्दू, तौंसा, मरी और तलागंग को ज़िला, जबकि गुजरात को डिवीजन का दर्जा दे दिया। गुजरात को शामिल करने से सूबे में डिवीजन की तादाद 10 हो गई। 5 अजला के इजाफे से सूबे में अब अजला की तादाद 41 होगी। सूबा पंजाब में तहसीलों की तादाद 151 हो गई। लाहौर सूबे में सबसे ज्यादा 10 तहसीलों वाला जिला बन गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने 5 अजला की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, साल 2024 के दौरान भी बदतरीन स्मोग ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। 2024 में 1590 की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच जाने वाला औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने आने वाले बरसों की तस्वीर भी वाज़ेह कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। 2015 से पहले जैसे हर कोई ही सर्दियों की आमद का इंतजार किया करता था कि सर्दियों से पहले गुलाबी से मौसम से लुत्फ अंदोज होना हर किसी की ख्वाहिश होती थी। ऐसे मौसम में लोग बाग मिल बैठने के बहाने ढूंढा करते थे और फिर 2015 का साल आ गया। ये साल अपने साथ स्मोक का आफियत भी ले आया। 2015 में लाहौर का ज्यादा से ज्यादा औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 की सतह तक गया था और 2024 में ये आलम कि लाहौर में एक मौके पर 1590 की सतह तक पहुंच जाने वाले औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स ने आलूदगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस रीजन में हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस हम प्रेशर में हैं, हम प्रॉब्लम में हैं। हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सारी कसावतें ज़्यादा हमें हिट करती हैं। हमारे हालांकि कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेस दैन 1% है। और ये स्मोग, ये इस तरह की चीज़ें डिस्पाइट बहुत सारे मैयर्स के
ये हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से 2024 बदतरीन साल साबित हुआ और इंसदाद स्मोक के हवाले से तमाम हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। क्राइन बताते हैं कि अगर हमने तवीलुल मुद्दती इक़दाम न उठाए तो आने वाले बरसों के दौरान सूरत हाल के मज़ीद ख़राब होने के कवी ख़दशात मौजूद हैं। हवा में पॉल्यूशन जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं उसमें ज़्यादा रोल तो पौधों का ही है। पौधे जो हैं वो माने जाते हैं फाइटो रेमिडिएशन हम कहते हैं इस अमल को, कि जिसमें पानी में हवा में जो मुज़र अज़रात आ जाते हैं, मालिक्यूल्स आ जाते हैं, गैसेस आ जाती हैं, उनको रिमूव करने के लिए पौधों से बेहतर और कोई रेमिडिएटर्स नहीं हैं। कोई शक नहीं कि स्मोक कैफियत ने लाहौर के रवायती तिलिस्म को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। बात बहुत सीधी और साफ है कि गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई से चिमटे हुए स्मोक की सफरियत के आने वाले साल के दौरान भी वापसी के भरपूर इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन हाँ, अगर हम गर्दो गुबार में कमी और दरख्तों की तादाद में इजाफा करने में कामयाब हो जाते हैं तो सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आलमी मंडियों में सोयाबीन की कीमत गिर गई। घी और कुकिंग ऑयल बदस्तूर महंगाई के भंवर में शहरियों ने खुर्दनी तेल और घी की कीमतें फौरी कम करने का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में सोयाबीन की कीमत में बड़ी कमी भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी न हो सकी। आवाम महंगा घी और ऑयल खरीदने पर मजबूर। दर्जा अव्वल घी 560 रुपए किलो जबकि दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 580 रुपए लीटर तक फरोख्त हो रहा है। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद मुकामी मार्केट में घी और कुकिंग ऑयल के दाम कम न हो सके। शहरियों ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फौरी और मुनासिब कमी का मुतालबा कर दिया। सोयाबीन जो है ना वो उसका देखे रेट कम हो गया आलमी मंडी में, और ये लोग फैक्ट्रियों में पूछते नहीं हैं। घी ऑयल आप ले लें, वहीं पे जो है ना वो बरकरार है। उनकी कीमतें कम करने के बजाय उन्होंने उधर ही रखा हुआ। जब ये कम होती हैं, बढ़ती हैं कीमतें, फौरी ये स्टॉक को रोक लेते हैं और तेज़ कर देते हैं काम। पहले 450 से आप 550 हो गए, 560 ही भेज दें। अब कीमत वधी जाती, घट नहीं हो जाती। शहरियों का मजीद कहना है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मुनाफाखोरों को कंट्रोल करें और आलमी मंडी में कम होती कीमतों का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएँ। सब्जियों की कीमत को ब्रेक लगने लगी, लेकिन टमाटर के नर्ख में तेज़ी बरकरार है। टमाटर 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। पोल्ट्री मसनूआत के दाम भी गरीब की पहुँच में ना आ सके। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। टमाटर की सरकारी कीमत 10 रुपये इजाफे से 190 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में टमाटर 220 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहे। प्याज 140 से 150 रुपये फ़ी किलो, आलू 100, लहसुन 700, अदरक चाइना और अदरक थाईलैंड 450 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 60 और फूल गोभी 80 रुपये फ़ी किलो मिल रही। पालक और साग 40 से 50 रुपये फ़ी किलो, शलजम 50, मूली 40 और गाजर 70 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रही है। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 7 रुपये कमी से 468 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपया इजाफे से 325 रुपये फ़ी दर्जन हो गए। आवाम कहते हैं महंगाई के साथ अशिया के दाम भी मनमाने हैं। इंतजामिया को गिरां फरोशी पर काबू पाना चाहिए। घी कहाँ से कहाँ चला गया घी। आज गरीब के बंदे बहुत दूर निकल गई हैं चीज़ें कि एक बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा के आता है ना, वो घी लाता है तो घर पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं उसकी जेब में। रेट कोई और लिखे होते हैं और ये देते कोई और है। और हर रोज़ कभी क्या कहते हैं, ये गाजर महंगी होती है, कभी मटर महंगे होते हैं। ये इनकी कोई तरतीब ही नहीं है। ये हर रोज़ यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। मार्केट ज़राए के मुताबिक फ़िलहाल तो सब्जियों के नर्ख में ठहराव है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफे से फसल मुतासिर होती है। आने वाले दिनों में सब्जियां महंगी होने का खदशा मौजूद है। महंगाई का पारा मुसलसल दूसरे हफ्ते भी आई। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.38% का इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 4.62% रिकॉर्ड की गई, जबकि एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया महंगी जबकि 13 सस्ती हुई। ये रिपोर्ट देखिए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के पारे में दूसरे हफ्ते भी इजाफे का रुझान। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.38% का इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की कीमत डबल सेंचुरी क्रॉस करके 212 रुपए तक पहुँच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में जलाने की लकड़ी फी मन 25 रुपए से जायद, लहसुन फी किलो 9 रुपए 54 पैसे, LPG का घरेलू सिलेंडर 24 रुपए 61 पैसे और चीनी फी किलो 31 पैसे मजीद महंगी हो गई है। डालडा, कुकिंग ऑयल, घी,
साबन, बीफ, गुड़ भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज फी किलो 6 रुपए जबकि आलू फी किलो 4 रुपए 61 पैसे सस्ते हुए हैं। 20 किलो आटे का थैला 13 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ जबकि अंडे, चिकन, दाल माश, दाल मसूर भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा दूध, खुश्क दूध, दही, बिजली समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। लंडा बाजार में भी महंगाई का चर्चा। छुट्टी के रोज लंडा बाजार में शहरियों का रश। खरीदारों की बड़ी तादाद ने गर्म मलबूसात की कीमतों में होशरुबा इजाफे का शिकवा किया। लाहौर के लंडा बाजार में भी महंगाई का बाजार गर्म। छुट्टी के रोज गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार में रश। जैकेट्स, शर्ट्स, दस्ताने और जराबे तो दस्तयाब, लेकिन कीमतें गरीब की पहुंच से बाहर। महंगाई के सताए अवाम के लिए लंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल हो गई। खरीदारों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल की निस्बत गर्म मलबूसात की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ है। 700 रुपए तक मिलने वाली जैकेट अब 1500 रुपए में बेची जा रही है। कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं, जो बहुत अप है, रेट बहुत अप है। जैकेट को हाथ लगाने नहीं देते, पहले क्या देते हैं 8000 9000, इससे कम नहीं। चीज़ अच्छी तो नहीं मिली, महंगी ज़रूर मिली है यहाँ पे। पहले चीज़ें सस्ती मिलती थी, अब महंगाई ज़्यादा हो गई है तो इन्होंने भी महंगाई कर दी है। लाहौरियों का मजीद कहना था कि लंडा बाजार से इस्तेमाल शुदा चीजें सस्ती मिल जाया करती थीं, अब तो ये बाजार भी सस्ता नहीं रहा। क्रिसमस डे की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में केक काटने की तकरीब हुई। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने मसीही बरादरी के हमरा केक काटा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मुदस्सिर नवाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर जाफिर हुसैन ने भी तकरीब में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शोजिन वोस्त्रो, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अली बाबर राय और दीगर भी मौजूद थे। डीसी लाहौर का कहना है मसीही बरादरी की खुशियों में हम बराबर के शरीक हैं। मसीही बरादरी ने क्रिसमस डे की मुनासबत से केक काटा। क्रिसमस की आमद पर मसीही बरादरी में खुशी की लहर। शहर के गिरजा घरों में क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए तैयारियां और केक काटने का एहतमाम किया गया। क्रिसमस की आमद पर मसीही बरादरी में खुशी की लहर। लाहौर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशियां मनाने और केक काटने का एहतमाम। सेंट लूक कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की तकरीब में MPS अमीला खान की खुसूसी शिरकत। मसीही बरादरी के साथ केक काटा। मसीही बरादरी का कहना है कि क्रिसमस का पैगाम सलामती, अमन और खुशी का पैगाम है। MPS अमीला खान का कहना है कि पाकिस्तान के झंडे में सफेद रंग इकलियतों की नुमाइंदगी कर रहा है। हम सब मिलकर क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं। क्रिसमस का पैगाम मोहब्बतों, खुशियाँ बांटने का नाम है। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हम सब इसके वासी हैं। हम सब में ये तफरीक तकसीम को बलातर करके हम सब मुस्लिम मसीह इत्तेहाद मिलजुल कर तमाम ईदों त्यौहारों को इकट्ठा मनाना चाहते हैं और मनाते हैं। सेंट लूक कैथोलिक चर्च के फादर का कहना है क्रिसमस खुशियाँ बांटने का दिन है। क्रिसमस का पैगाम यही है कि हम खुशियों को बांटें, हम दूसरों के साथ खुशियों को बांटें। और दूसरी जो अमन की बात है, हम जानते हैं कि पूरी दुनिया को जो है अमन की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को भी है। तो हम इन इबादत में जो हमारी क्रिसमस की इबादत हैं, हम खुसूसी तौर पर अपने मुल्क की सलामती के लिए और अमन के लिए दुआ करेंगे, अपने मुल्क की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए दुआ करेंगे। क्रिसमस की आमद के मौके पर लाहौर समेत मुल्क भर के गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों और स्टार से सजा दिया गया है। ST थॉमस सेंटर रायविंड में तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। अमरीकी कौंसिल क्रिस्टन हॉकिंस, वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर ने खसूसी शिरकत की है। और आपको बताएं सेंटर के सदर और बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करवाई। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था क्रिसमस का त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है। पंजाब काबीना ने पंजाब मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद प्राइवेट गाड़ियों पर भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार देने का फैसला। मीटिंग मिनट्स के इजरा के बाद नया फैसला नाफिजुल अमल होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट गाड़ियों की फिटनेस चेक करने की भी मैकेनिज्म बना लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। पंजाब काबीना का प्राइवेट गाड़ियों से मुतालिक अहम फैसला। पंजाब मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद प्राइवेट गाड़ियों पर भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार देने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने प्राइवेट गाड़ियों की फिटनेस चेक करने का भी मैकेनिज्म बना लिया। गाड़ियों के फिटनेस चेकिंग के रेगुलेशंस पर महकमा ट्रांसपोर्ट अमल करवाएगा। तजवीज के मुताबिक 5 साल तक पुरानी गाड़ी के लिए सिर्फ एक मरतबा फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। 5 साल से ज्यादा पुरानी होने वाली गाड़ी को हर 2 साल बाद फिटनेस
टेस्ट करवाना होगा। 8 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और फिटनेस चेकिंग के लिए फीस का तयन महकमा ट्रांसपोर्ट करेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ग्रीन टाउन में फिटनेस सर्टिफिकेट सेंटर तामीर कर दिया गया। फिटनेस पर पूरा उतरने न वाली गाड़ियों के मालिकान को फिटनेस ठीक करने के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। मोटरवे पुलिस फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल न करने वाली गाड़ियों को मोटरवे इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बार बार शगाफ पड़ने पर जौहर टाउन मेन बुलेवर्ड सीवरेज लाइन तब्दील करने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने वासा की तजवीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी की। 1 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। सीवरेज लाइन के लिए शौकत खानम से अल्लाहू चौक जाने वाली सड़क इस्तेमाल होगी। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन की बोसीदा सीवरेज लाइन की तब्दीली का मामला। 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन तब्दील करने पर बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। पंजाब हुकूमत ने मरकजी सीवरेज लाइन तब्दील करने का मंसूबा बना लिया। सीवरेज लाइनों की तब्दीली का काम रवा माली साल में शुरू किया जाएगा। मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए 72 इंच का नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन से गुजरने वाली मुल्हिका लाइनों को भी नए सिरे से मुंसलिक किया जाएगा। मरकजी शाहरा की सर्विस रोड पर नई सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। मुस्तकबिल में शगाफ पड़ने के वाकयात रोकने के लिए बोसीदा सीवरेज लाइन को बंद कर दिया जाएगा। बढ़ती हुई आबादी को मद्देनजर रखते हुए सीवरेज लाइन का साइज बढ़ाया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।